dear students. I'm Reda, and I welcome you all to this IP Math prep session. Today's focus: how to clear the IP Math verbal ability cutoff in just 30 minutes. Yes, you heard it right. So, today in this session, we will understand how this 30-minute game changer can actually help you boost your verbal ability score. So, stay tuned as we work our way through the verbal ability section of IPMAT 2024 and see how one could have enhanced his score and cleared the cutoff in just 30 minutes. Now, before we delve deep into this, let's first of all understand the cutoffs of the previous few years. So पिछले कुछ सालों के cutoffs देखेंगे verbal ability section. So IPMAT 2022 में verbal ability का cutoff था 112. Now number of questions in the verbal ability section were 45. The time that the students had to deal with these 45 questions was 40 minutes. 4 mark per question, negative 1 mark if you made a mistake. The same pattern in 23 and the same in 24. But 23 May, the cutoff rose to 125, and in 24, we saw a dip in the cutoff, and the cutoff was 113 for general students. Now, अगर मुझे IP मैथ वर्बल एबिलिटी सेक्शन में 113 का एवरेज कट ऑफ चाहिए तो मुझे कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने चाहिए कि मेरा कट ऑफ निकल जाए. लेट्स डू द मैथ. वन क्वेश्चन 4 मार्क्स. दैट मीन्स कितने सही क्वेश्चन पे आपका कट ऑफ निकलेगा. लेट्स से फॉर नाउ 113 अगर मेरा कट ऑफ है तो मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए. जस्ट डू द मैथ. Well, divide 100 and let's just divide 113 by 4. Now 4 twos are 8, 3, 3, 4, 6 are 24, 4 sevens are 28, 4 eights are 32. So roughly 28 questions. Let's say if I do 29 questions right, मेरा कट ऑफ निकल जाएगा. That means अगर out of 45 questions, I attempt only 30 questions. I do not attempt all the other 15 questions of which I'm not sure or which I'm not sure of. I guess I can still make it through the cutoff and secure my seat in the IP Math in IM Indore, right? So let's understand one more basic before we take a look at the IP Mat 2024 verbal ability section and see how the paper could have been attempted or what sections could have been attempted to achieve this cutoff in just 30 minutes. Let's see. First of all, the structure of the paper of the verbal ability section. So you can expect reading comprehension passages 2 followed by 6 questions, roughly 12 questions in the reading comprehension section. Grammar, they can be 4 or 5 questions, the number generally varies. Vocabulary will comprise 3 parts: confusing words, idioms, and fillers. Confusing words, idioms, and fillers. These three have always been a part of the paper. The number may vary. They have recently started including questions based on phrasal verbs in the IP Math verbal ability section. Again, the number can vary. And then there are questions based on parajumbles, type in answer type. So you do not get choices here. You have to type in the answer after you arrange the given sentences in a proper sequence. And then there are questions based on para completion. Now, like I said, the number can vary, but the total number of questions are 45. And the score, I haven't done the totaling, the score with this thing, mark calculation for the reading comprehension passages, but the total marks is 45 into 4, I guess 180. Now, you know that you have 45 questions and you only get 40 minutes. The cutoff has ranged between 112 to 125 in the last 3 years. And if I want to do well, I know that I have to attempt a minimum of 29 to 30 questions correctly to get the cutoff. But then, how can I do this in just 30 minutes? Trust me, this is possible, but it will involve a bit of preparation. And if you work in the right direction, when you know what sort of paper is expected, if you work on these specific topics right from the beginning and you keep practicing them till the time you feel that you've really mastered them, trust me, attempting the paper
getting more than what is required to clear the cutoff is also possible. Now, unlike a lot of other people, I would not recommend any sort of shortcuts. I somehow believe that if you want to attempt a paper at all India level, where the number of participants or competitors is the number is only rising with every passing year, it is important that you work hard, uh, write mocks, work hard in the right direction, and then think of clearing the paper. And it is doable. Every year, kids like you do this. Every year, kids like you clear the paper with a good cutoff, with a good score, I'd say. Now we will understand what are these minimum 29 to 30 questions that should be attempted to clear the cutoff. Now let's see. We'll start with some of the questions. Like I said in the beginning, we will use the 20 IPMAT 2024 verbal ability section as our source. Now I may take a lot of time because I'll be explaining the questions to you, but I'll also tell you what makes me say that these questions could have been attempted in 30 minutes or even lesser time than 30. Now, let's start. See, we know that we will get questions based on vocab. I'll take you back to this screen. Now, see, there are certain sections of the paper like confusing words, idioms, fillers, phrasal verbs, grammar. Look at these one, two, three, four, five sections: grammar, confusing words, idioms, fillers, and phrasal verbs. Now, the beauty of this section is that IPMAT will give you questions to understand the application of your knowledge. They will not give you any question directly. They will not ask you the meaning of an idiom. They will not ask you the meaning of a phrasal verb, or they will not ask you the meaning of a word that can confuse you. It could be a homonym or any other word. They will give it to you in the form of a fill up, or they will ask you to rectify the error, correct the error. That means they want to know whether you know the concept and how it is used in a given statement, how it is used correctly in a given statement. So these sections: grammar, confusing words, idioms, fillers, and phrasal verbs. How many questions are we looking at? 4, 6, 3, 6, 4. Look at the number. Roughly 10, 20, 23 questions. Now, these 23 questions into 4 will give you 3 fours are 12, 2 fours are 8, and 1 9. Now, see, when we know that we can expect questions based on all these 4 5 topics, why don't we prepare them well in advance? If you work hard, if you prepare these well in advance, you will know the answers. Now, there are certain things that go, I mean, hand in hand with what I'm saying. So, when you will start writing either the mock or the actual paper, either you will know the answer or you won't. That means if you know the answer, you can handle it within, let's say, in less than a minute. So, the only time you need or to comprehend the question is the time that you will require to read. You cannot sit there and think of the answer, at least as far as these 5 topics are concerned. The best part, you will have multiple choices to choose from. So if you know the answer, you read the question, you take the answer, you move ahead to the next question. So there are these 5 sections. We are looking at 23 questions as already discussed. Now, if at all you read the question and you can answer these in less than 1 minute, how much time do you think you'll need? Now, maybe for grammar, the sentences will be long and you may need a lot of time. But for confusing words, idioms, fillers, even phrasal verbs, either you will know it or you won't. So beyond 30, 40 seconds, you don't have to go beyond 30, 40 seconds. So I guess now we'll delve deep. And as far as the others, now see, these are 23 questions. If we need, let's say you are able to handle this section in, let's say, 20 minutes. That's on the higher side. You still have approximately 10 minutes to deal with only 5 to 6 questions more, which can be based on para-jumble, para-completion, or reading comprehension passage to clear the cutoff. That means you work around these topics as quickly as you can, as smartly as you can, and you save a lot of time for the other topics where you need to probably think, consider all the options carefully, and then choose. Because trust me, uh, the options are tricky. They are deceptively close. So you will have to
judge or evaluate the options carefully before you mark the answers. But what's the smart way? That we first attempt these questions, we save as much time as possible. 20 minutes is the higher time, is on the higher side that I'm talking about. These sections can be attempted in less than 20 minutes. Students do that all the time. So they attempt these sections first, they save as much time as possible, then they move to these heavier sections, maybe pick up one RC, or maybe pick up just the para completion, or maybe just the para jumble, or maybe a combination of all to attempt as many questions as possible. Now we'll put whatever we have discussed to practice and we'll try to get the answers. Now, the key here will be your preparation. If you can attempt this section fast, if you can attempt this section smartly, you will be, it'll actually boost your confidence. You'll feel very happy and you'll feel very proud. You'll feel very confident when you'll start attempting the rest of the section. I guess let's see what the paper had to offer in 2024. So I have not picked up all the questions. I've picked up only that section of the paper which was relatively easy and you could have attempted smartly. Now again, I will always emphasize and repeat that preparation is must. You just can't walk into the center to write the paper and still hope to achieve a good score. Preparation is important if you want to do well in the verbal ability section. We'll talk about that towards the end. Now let's see. The question said, complete the following sentences by choosing the most appropriate word, phrase from the options given below. As you can see, these are idioms and phrases. My supervisor seemed to be in a bad mood because he dashed when I asked if I could leave an hour early, ate my head, cut my voice, bit my head off, eat my ear off. Now, out of these, ate my head, like eating someone's head simply means that you're pestering somebody. जैसे बोलते हैं ना मेरा दिमाग खा दिया बिल्कुल, तो किसी का दिमाग खा जाना. That's what this one means. Cut my voice, hit my ear off, not even legit idioms. Now sentence की डिमांड क्या थी? मेरे सुपरवाइजर का मूड खराब था. उसका मूड खराब था. तो अगर उसका मूड खराब था तो उसने क्या किया होगा? उसका सिर्फ दिमाग खाया होगा. उसने भी बोला मुझे जल्दी घर जाने दो, उसका मूड खराब था. उसने उसका दिमाग नहीं खाया होगा. दिमाग खाने का मतलब तो होता है आप खूब बातें कर रहे हो और सामने वाले को अनॉय कर रहे हो, है ना. कट माई वॉइस नहीं होता, ईट माई ईयर ऑफ नहीं होता, बिट माई हेड ऑफ का मतलब होता है चिल्लाना किसी के ऊपर. नाउ जस्ट इमेजिन इफ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस idiom, how easy it is. Just the only time that you need is the time that can be utilized. So just reading this sentence and evaluating the options. This question can be attempted in less than 30 minutes, 30 seconds, whether you know it or you don't. तो करना है 30 सेकेंड्स के अंदर करो, 40 सेकेंड्स के अंदर करो, एंड उसके बाद बन रहा है या नहीं बन रहा है आगे बढ़ जाओ. क्योंकि या तो आप करोगे या नहीं करोगे, वहां बैठ के आप इनके मीनिंग नहीं सोच सकते. यू हैव टू नो द मीनिंग इन एडवांस इफ यू वांट टू डू वेल, राइट. लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन. So वो question under 30 seconds वाला था. Now, in a circus where performers share dressing rooms, training spaces and work in fast-paced environment. तो हम बात कर रहे हैं circus की जहाँ पे performers शेयर करते हैं ड्रेसिंग रूम, ट्रेनिंग स्पेस और बहुत फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम करते हैं. द सक्सेस ऑफ द शो dash fostering teamwork. Now when you foster teamwork and collaboration, we are talking about everything in a very positive sense कि भाई वो जो है, जो चीज़ अगर कोई चीज़ foster करती है तो वो उसे support करती है. तो पूरा sentence बहुत positive connotation है. Now let's take a look at the option. Comes with, comes along, come along with, comes down to, comes about. Now पहली चीज इसमें ना हम ये वाला ऑप्शन आउटराइट एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है सक्सेस ऑफ द शो. सक्सेस के साथ मुझे वर्ब में चाहिए था एस, तो ये तो भले ही सही है, वैसे वो नहीं है, पर अगर सही मीनिंग होता भी तो भी ऑप्शन रूल आउट हो जाता बिकॉज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मैच नहीं करता. अब कम विद का मतलब होता है टू बी प्रेजेंट और एसोसिएटेड विद एन एंटिटी. भाई कोई चीज, सो with great power comes great responsibility. तो कोई चीज किसी किसी चीज के साथ एसोसिएटेड है, पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद इट. ठीक है, ऐसा. कम अलोंग का मतलब होता है somebody who leads the way. Comes down to something का मतलब होता है the result of something, the impact of something, something that influences something most.
So and then we have come about. कम अबाउट का मतलब होता है कोई चीज जो होती है. सो एक सर्कस जहां पर परफॉर्मर्स जो है दे शेयर द ड्रेसिंग रूम्स, ट्रेनिंग स्पेसेस, द सक्सेस comes down to or comes about, happens. देखो यहाँ पर होगा the answer will be comes down to because it is something. जो सक्सेस है वो टीम वर्क और कोलैबोरेशन की वजह से होती है. सो दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट द सक्सेस मोस्ट. सो आई गेस द राइट आंसर हियर विल बी कम्स डाउन टू. से समथिंग यहाँ पर रिप्लेस हो जाता फॉस्टरिंग टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन से. द नेक्स्ट वन अगेन, या तो आपका आता होता या नहीं आता होता. वी कुड हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन इन लेस देन 30 seconds, in at least 30 seconds if not more. Anil could not go to his friend's party as he had fever and was. Well, अगर आपको पता हो तो ये तो 10 seconds वाला क्वेश्चन था. अंडर द वेदर का मतलब होता है आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार हो. ये लेजिटिमेट इडियम्स हैं भी नहीं. 10 seconds में ये क्वेश्चन किया जा सकता था. तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं जो आइडियली स्पीकिंग 1 minute 10 seconds या एट द मोस्ट 1 minute 20 seconds के अंदर हो जाने चाहिए थे. The next one. In his address to the candidates contesting the student council elections, the principal said, if you want others to take you seriously, then you must dash issues like gender bias and inclusivity. अब देखो प्रिंसिपल बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो दूसरे आपको सीरियसली लें तो आपको जरूरी जरूरी क्या करना है. बहुत पॉजिटिव नोट में कुछ बोला होगा. आप चाहते हो लोग आपको सीरियसली लें तो आपको क्या करना चाहिए. रूल द रूस्ट, वॉक द टॉक, रीड द लाइंस, गो अराउंड द बेंड. भाई गोइंग अराउंड द बेंड होता है कि आप तो कंफ्यूज हो थोड़ा सा. रीड द लाइन लेजिटिमेट नहीं है, रीड बिटवीन द लाइंस होता है. ये तो एक्सप्रेशन ही रॉन्ग था. सही होता भी तो भी रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि इनफर सही करो आप चीजों को, विच वॉज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. वॉक द टॉक का मतलब होता है कि जो आप बोल रहे हो वो आप करो. तो सिर्फ बोलो नहीं कि ये अच्छा होना चाहिए या ये ऐसा होना चाहिए, करके दिखाओ. लीड बाय एग्जाम्पल. सो दैट्स व्हाट वॉक द टॉक मीन्स. एंड रूल द रूस्ट होता है आप बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो. यू आर द वन हु इज मेकिंग ऑल द डिसीजंस. सो फॉर एग्जाम्पल, I rule the roost in my group. So I am the decision maker. That means I consider myself ahead or at the top of everyone. तो यहाँ पर वो रूलिंग द रूस्ट की डोमिनेट करने की बात नहीं कर रहा है. वो यहाँ पे कह रहा है कि जो अगर आप चाहते हो वो आपको सीरियसली लें तो आप जो बोल रहे हो आपको वो करके भी दिखाना पड़ेगा. यू मस्ट वॉक द टॉक. इश्यूज लाइक जेंडर बायस एंड इंक्लूसिविटी आपको ये करना पड़ेगा तब लोग मानेंगे. अगेन द ब्यूटी, either you know the meaning of the idioms and you mark the answer. वरना वहां पर बैठकर आप सोच तो नहीं सकते थे कि रूल द रूस्ट या वॉक द टॉक क्या हो सकता है. या तो मतलब पता है तो अंडर 40 seconds, वरना छोड़ो क्वेश्चन, आगे बढ़ो. The next one. The students' picnic plans dash when it rained heavily in the morning. Dropped out, dropped off, fell through, fell behind. भाई fell behind का मतलब होता है पीछे छूट जाना. जैसे आपके टीचर्स तेजी से सिलेबस खत्म करवा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हो. So you're falling behind the others. ठीक है. Fell through या fall through का मतलब होता है something that doesn't materialize. आपने सोचा, आपने प्लान बनाया, वो वर्कआउट नहीं हुआ. So it didn't fall through. ड्रॉप ऑफ होता है चीज का कम होना. समटाइम्स द अटेंडेंस ड्रॉप्स ऑफ, सो ड्रॉप ऑफ चीज का कम होना. एंड ड्रॉप आउट होता है स्टॉप पार्टिसिपेटिंग और मे बी स्टॉप स्टडिंग. तो बहुत सारे बच्चे कभी कभी अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं. सो दे ड्रॉप आउट. सो दैट्स व्हाट इट इज. सो आई गेस इसका क्लियर आंसर भी उसका प्लान था, बारिश हो गई तो समझ में आ रहा है कि नहीं हो पाया होगा, फेल हो गया होगा उसका प्लान. अगेन इफ यू नो इट, ये अंडर 30 seconds वाला क्वेश्चन था. The next one. All the employees agreed that new regulations had dash positive change in the workplace. भाई नए रेगुलेशन आए हैं, पॉजिटिव चेंज आया है. तो पॉजिटिव चेंज अगर आया है तो उसका सही एक्सप्रेशन होता है ब्रिंग अबाउट. ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कोई चीज हो जाना. अब अगर आपको पता है तो अगेन 30 seconds इज द हायर साइड. ये 20 seconds वाला क्वेश्चन था. यू ऑल यू हैड टू डू वाज prepare it well and be sure that this is the right answer. The next one.
Question number 7. Sheila keeps interrupting Manohar when he's playing with his friends, but he dash because his younger sister. भाई वो उसे interrupt अगर करती है और she keeps doing this, that means she has the habit of doing this. वो फिर भी उसको कुछ नहीं कहता. देखो, but ही वो उसे तंग कर रही है, annoy कर रही है, interrupt कर रही है, but ही डैश. देखो, अगर बट है तो हमें चाहिए कोई चीज नहीं हो रही है, कोई चीज हो रही है, कॉन्ट्रास्टिंग रिलेशन चाहिए. वो इंटरप्ट करी है, लेकिन ही पुट्स अप विद हर, ही टॉलरेट्स हर बिहेवियर बिकॉज शी इज हिज यंगर सिस्टर. सो अगेन, इधर यू नो इट और यू डोंट वाला हिसाब किताब है. 7 क्वेश्चन थे अपने फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स के, एंड 7 into 4, 28 marks in how many seconds? So roughly 30 seconds per question, जिसमें से तो एक 10 seconds वाला question भी था. तो roughly कितनी देर लगाई हमने 7 question में? I guess around 2 minutes. हायर साइड पे 3 मिनट में ये 7 क्वेश्चन हो सकते थे, मगर ये डिपेंड करता लार्जली ऑन हाउ वेल यू वर प्रिपेयर्ड. वरना इन्हीं 7 क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता था कि कोई बहुत अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाए. बट देन इमेजिन, आपने अगर मेहनत करी है और ये क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, तो आई गेस 3 minutes इज द हायर साइड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. उससे भी जल्दी किए जा सकते थे. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. ओके, बेस्ड ऑन ग्रामर. ही इज वेरी केयरलेस एंड हैज लूज्ड हिज की ऑल द टाइम. अब देखो, पहले तो हमें ये समझ में आता है कि ही इज वेरी केयरलेस, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स उसकी हैबिट है कि भाई वो केयरलेस तो है, कुछ नहीं हो सकता उसका. ऑल द टाइम वो अपनी चाबी गुम कर देता है. तो वर्ड होता है लूज, और एक वर्ड होता है लूज. ये होता है गुम कर देना, ये होता है थोड़ा सा ढीला होना. तो लूज का सेकेंड फॉर्म है लॉस्ट. तो ही, देखो, पहली चीज अगर हम उसको बात करें कि उसकी हैबिट ही है, तो हमें चाहिए सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, क्योंकि अपने पास एंड है, पैरेलल स्ट्रक्चर मेंटेन करना है आपको. वॉज लूजिंग नहीं हो सकता, हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है. ग्रामेटिकली भी रॉन्ग है, वैसे भी गलत है ये. अच्छा, इज लूजिंग भी नहीं होगा, बचेगा ही क्या? लूजेस हिज कीज. सो ही इज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड लूजेस हिज कीज ऑल द टाइम. तो ये भी, आई गेस, अगर आपने थोड़ा सा भी टेंसेस को पढ़ा है, तो ये 10 seconds 20 seconds वाला क्वेश्चन था ये. द नेक्स्ट वन. आई हैड बीन हैविंग अ हेडेक सो आई विल नॉट. अब देखो, आई विल नॉट, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की. तो क्या मेरा सेंटेंस का ये वाला हिस्सा होना चाहिए सो दैट मेरा सेंटेंस पैरेलल हो जाए और ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए. अगर विल है तो ये और ये पास्ट टेंस तो नहीं हो सकता. क्लियर? अब बचा अपने पास बी एंड डी. I have a headache, so I will not attend the meeting. I have headache, so I will not attend the meeting. Now, surprisingly, एक वाले जो words होते हैं ना, they are more towards count nouns. तो उनके साथ अ लगाना गलत नहीं होता. I have a headache. I have a headache is a good expression. So I guess again an easy peasy question. I guess not 30 seconds, less than 30 seconds. The negotiations are unsuccessful and the board's hopes to continuing talks on future deal seems to be increasingly improbable. तो negotiations तो unsuccessful हो रहे हैं और लग रहा है कि भाई कुछ भी ना हो पाएगा. तो अब हमें देखना है. अच्छा, मजे की बात, प्रॉब्लम सिर्फ अंडरलाइंड पार्ट में है, बाकी प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा देखो, स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर. देखो, वेरिएंस कहाँ कहाँ पर है. पहली चीज तो मेरी नॉलेज ही बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. भाई आईपी मैट का पेपर देना है मुझे, बिना स्ट्रांग प्रिपरेशन के नहीं हो पाएगा. बट दूसरी चीज, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क. वेरिएंस देखो, सेम, सेम्स, सेम, सेम्स. तो या तो ये दोनों सही हैं या ये दोनों सही हैं. तो सबसे पहले अगर मैं ये ढूंढ लूं कि मेरा सब्जेक्ट क्या है इस केस में, तो दो ऑप्शंस तो ऐसे ही रूल आउट हो जाएंगे. सो लेट्स सी. बोर्ड्स होप्स टू कंटिन्यू टॉक्स ऑन फ्यूचर डील सीम्स. अच्छा, ये वाला पार्ट हम 2 मिनट के लिए अगर हटा दें, अब पढ़ो इस सेंटेंस को. द नेगोशिएशंस आर अनसक्सेसफुल एंड बोथ होप्स सीम टू बी. अब देखो, सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन यहाँ पर होप्स है, तो यहाँ पर देख लेते हैं. होप्स, 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 कोई चेंज नहीं है. तो प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ अपने को सिंगुलर प्लूरल वर्ब चाहिए होता है जिसमें एस नहीं होता. तो ये दोनों ऑप्शंस तो देखते ही रूल आउट हो गए. दो ऑप्शंस बचे अपने पास, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. अब इनमें से कौन सा बेटर है? ये है बोथ होप्स टू कंटिन्यूइंग.
on a future deal seen, boards hopes on continued talks. अब देखो दो फर्क है, एक है boards, एक है to, एक है on, एक है continuing, एक है continued seen. अब देखो इसमें गलत क्या है? Let's understand. The negotiations are unsuccessful and the board's hopes to continuing talks on a future deal seem to be increasingly improbable, and the board's hopes on continued talks on a future deal seem to be increasingly improbable. फर्क क्या है? इस वाले बोर्ड्स का मतलब है बोर्ड सिर्फ एक है और हम उसकी उम्मीद की बात कर रहे हैं। इसमें फर्क ये है कि ज्यादा है बोर्ड्स, एक बोर्ड, दो बोर्ड, तीन बोर्ड, मे बी आई डोंट नो हाउ मेनी बोर्ड्स, जस्ट दैट दे आर मोर देन वन। तो ये है होप्स to continuing on continued talks. Well, I guess this one could be slightly tricky. दोनों ग्रामेटिकली सही लग रहे हैं, दोनों का मीनिंग थोड़ा सा फर्क जरूर है, लेकिन there is no error as such in the two. But then probably जो बोर्ड होगा वो सिंगुलर होगा एंड उसकी उम्मीद टू कंटिन्यूइंग talks on a future deal जो है it seem improbable. I guess just that option A is better than option C. Now this one was one tricky question in the paper. The next one. इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता था, but then still more than 1 minute not required. The next one. In my opinion, the psychological thriller of Alfred Hitchcock, who is a master of suspense and horror, have. अच्छा, subject of discussion क्या है? In my opinion नहीं है, किसका है ये भी नहीं है। Subject of discussion है psychological thrillers, ठीक है? Thrillers, अच्छा, who is इसको modify कर रहा है। अब देखो साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हैव मोर लास्टिंग इम्पैक्ट, तो यहाँ पर हैव तो ये गलत नहीं लग रहा है। थ्रिलर्स हैव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट परफेक्ट है। देन एनी अदर फिल्म मेकर, गलती पता है क्या है यहाँ पर? हमने कंपेयर कर दिया इसके साइकोलॉजिकल थ्रिलर को किसी और फिल्म मेकर के साथ। हमें चाहिए था, लेट्स से इस एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सो द स्टोरी ऑफ एल्फ्रेड is more, let's say, exciting than the story of B। अगर मैं करूं तो मैंने कंपेयर करा है स्टोरी ऑफ ए विद स्टोरी ऑफ बी। इस केस में साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ हिचकॉक इज बीइंग कंपेयर टू एनी अदर फिल्म मेकर। हमें चाहिए था यहाँ पर साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ अदर फिल्म मेकर्स होता तो ये सेंटेंस सही हो जाता। तो यहाँ पे पैरेलल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट में ये उनका फेवरेट एरर है। सो लेट्स सी, आर हैविंग, हैज हैड मोर। वेल, हु इज, आई गेस सेंटेंस अगर आप देखोगे ना तो वो प्रेजेंट टेंस में है। तो हैड मोर लास्टिंग देन एनी फिल्म मेकर, इसमें अभी भी प्रॉब्लम भी करेक्ट नहीं हुई है और इसका टेंस भी गलत है। हैज, आर हैविंग मोर लास्टिंग इम्पैक्ट देन दोज ऑफ, देखो यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम तो करेक्ट हो गया। आर हैविंग क्यों? जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, हैव मोर लास्टिंग इम्पैक्ट, अगर हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो हमें कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं चाहिए। तो हैज हैड अ मोर लास्टिंग इम्पैक्ट देन दोज ऑफ अदर फिल्म मेकर्स, थ्रिलर्स के साथ हैज नहीं लग सकता। हैव हैड अ मोर लास्टिंग इम्पैक्ट देन दोज ऑफ एनी अदर फिल्म मेकर, आई गेस ओनली ऑप्शन सी विल फिट द बिल। आपको इसमें देखने की क्या जरूरत थी? सिर्फ पैरेलल स्ट्रक्चर एंड सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस। अगर हम ये तीन चीज देखते तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगता, बट 1 मिनट में ये क्वेश्चन भी डुएबल क्वेश्चन था और सही करा जा सकता था। क्लियरली रूल बेस्ड क्वेश्चन था। While the bustling city streets were filled with the cacophony of honking horns and chatter of pedestrians, the serene countryside, where time seemed to move at slower pace, provide a welcome retreat for their seeking solace. एक तो यहाँ पर देर गलत है, अगर मेरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर प्रोवाइड भी गलत है। सो आई गेस बहुत कम एरर्स दिख रहे हैं। लेट्स सी, प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स नहीं हो सकता, टेंस इज नॉट इन सिंक विद द गिवन इंफॉर्मेशन। तो प्रोवाइडेड अ वेलकम रिट्रीट, प्रोवाइडेड अ वेलकमिंग रिट्रीट। इजी क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मक्खन क्वेश्चन था, बिल्कुल 10 सेकेंड्स वाला। चलो आगे बढ़ेंगे।
सो हमने अभी तक 12 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ऐसे जरूर आए जिसमें थोड़ा सा टाइम हमें लगा, लेकिन फिर भी इन 12 क्वेश्चन को बहुत आराम से 7 से 8 मिनट्स में किया जा सकता था, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन. सो वी हैव डेल्ट विथ 12 क्वेश्चंस इन लेस देन, लेट्स से, इन अराउंड 8 मिनट्स. ये भी मैं हायर साइड पे कह रही हूँ. चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन para completion. Now let's see. दिखते हैं थोड़े से ट्रिकी, लेकिन अगर आप एसेंस पकड़ के चलोगे तो बहुत डुएबल क्वेश्चंस होते हैं. इनको भी ठीक से हैंडल करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता. Let's take a look at this one. Let's read it together. So this says most artificial intelligence AI applications in the field of healthcare industry, finance, transportation industry rely heavily on deep learning and natural language process. Give me just 1 second. तो बात हमने कहाँ से शुरू करी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, फाइनेंस जो है, हेविली रिलाई किस पे कर रही है? डीप लर्निंग एंड लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे. तो हमें वो फैक्चुअली न्यूट्रली बता रहा है भाई, ये जो है एआई जो है ये इन चीज़ों पे रिलाई करता है. However, while AI system can mimic existing, now however जब सेंटेंस में लगता है ना तो राइटर कॉन्ट्रास्ट शो करेगा. While AI system can mimic existing style and patterns, there is an ongoing. भाई वो मिमिक तो कर रहा है, लेकिन there is an ongoing debate about whether it can truly possess creativity in the same sense as humans. भाई फर्स्ट लाइन में उसने इंट्रोड्यूस करा कि एआई क्या कर रहा है, कैसे काम करता है. सेकंड सेंटेंस में उसने बोला भाई वो मिमिक तो कर रहा है, लेकिन क्या वो इंसान की सेंसिटिविटी को भी रिप्रोड्यूस कर सकता है इस काम में? तो यहाँ पर आके हमें एक बात क्लियरली समझ में आती है कि राइटर थोड़ा सा एप्रीहेंसिव है. ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शंस अपने एंड समझते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है. Let's take a look at the options. Man has long feared the rise of the machine, his own creation becoming smarter and more intelligent than him. हम बात कर रहे थे कि क्या उसमें वो क्रिएटिविटी और सेम सेंस है. तुम्हें लगता है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रीम साइड पे चले गए, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि राइज ऑफ द मशीन है, उसकी क्रिएटिविटी स्मार्टर हो जाएगी, इंटेलिजेंट? हम उसकी इंटेलिजेंस या उसके ज्यादा स्मार्ट होने की बात कर ही नहीं रहे थे. हम तो बल्कि अप्रीहेंसिव है कि क्या उसमें हमारी जितनी सेंसिटिविटी या क्रिएटिविटी आ पाएगी. तो ये तो थोड़ा सा एलिमिनेशन के लिए मार्क करा जा सकता है. AI generated work may lack depth, emotional connection, unique perspective that come with experience and emotions. Well, इसको hold पे रख लेते हैं because it is in sync with the given information. AI usage raises a number of ethical concerns such as privacy issue, bias in algorithm, um, and potential misuse. भाई हम कंसर्न्स की बात करें, लेकिन हम सेंसिटिविटी के अराउंड बात कर रहे थे. ये वे टू एक्सट्रीम है एंड आउटराइट, मतलब नॉट इवन रिलेटेड टू द गिवन कंसर्न है. हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग हैज ऑलरेडी प्रूवन अ मशीन्स एबिलिटी टू परफॉर्म एडवांस कैलकुलेशन फास्ट. ये तो पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, नॉट इवन रिलेटेड. तो आई गेस इसका क्लियर आंसर होगा ऑप्शन बी. अब सोचो इस क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइम चाहिए था मुझे. पढ़ना है, कॉन्टेक्स्ट समझना है, ऑप्शंस इवैल्यूएट करने हैं. ये तो इजी क्वेश्चन था जिसमें क्लियरली एक पॉइंट स्टेटेड था. आपने उसे कॉम्प्रिहेंड करा, आपने उसके अराउंड अपना दिमाग लगाया और लॉजिकल इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हुए आंसर मार्क कर लिया. तो भी हायर साइड ये क्वेश्चन 1.5 मिनट्स के अंदर किया जा सकता था. द नेक्स्ट वन. In an era where privacy and individualism are often prized above all, Japanese architect Reiken Yamamoto blurs the boundary between public and private. भाई हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हम प्राइवेसी और इंडिविजुअल को बहुत हाई इंपॉर्टेंस देने लगे हैं. उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट के बीच की लाइन बाउंड्री को ब्लर कर दिया है. सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन देख रहे हो क्या है? देन देर इज अ ब्लैंक.
His work is a testament to the power of architecture to break down barriers and to foster a sense of community. भाई उसके काम से बैरियर्स खत्म हुए हैं, सेंस ऑफ कम्युनिटी फॉस्टर हुआ है. Through his innovative designs, he challenges traditional notions of public and private spaces, seamlessly blending the two realms. उन्होंने पब्लिक प्राइवेट प्लेसेस को ब्लेंड कर दिया है. अब देखो राइटर एक ही बात को बोल रहा है, एक ही पॉइंट है उसका कि जो ये जेंटलमैन है राइकेन यामामोटो, उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट के बीच की दूरी को मिटा दिया है. ठीक है, उसने उन दोनों को ब्लेंड कर दिया है, अपने आर्किटेक्चर से किया है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज इस गैप को ब्रिज कर पाएगी. He successfully integrates traditional Japanese aesthetics and modern design principles in his. भाई ट्रेडिशनल काम है उनका, ठीक है, मॉडर्न डिजाइन है. ट्रेडिशनल और मॉडर्न का अमालगमेशन, पर क्या हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न अमालगमेशन की बात कर रहे थे उनके डिजाइन प्रिंसिपल्स में, या हम प्राइवेट और पब्लिक को ब्लेंड करने की बात कर रहे थे? सोच के देखो. He was recently named the 2024 laureate of the prestigious Pritzker Architecture Prize. Laureate is the receiver of a laurel, that is a prize recognition or award. Related है but unrelated भी है. In the world of architecture, he stands out as a visionary voice advocating the return to more interconnected way of living. Interconnected क्या हुआ? इंटरकनेक्शन का मतलब होता है जॉइंट है, कुछ जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है ना? तो होल्ड पे रख सकते हैं. अच्छा, द लास्ट वन, ही इज डीपली कमिटेड टू बिल्डिंग हार्मोनियस सोसाइटीज थ्रू हिज आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस. हार्मोनियस सोसाइटी का मतलब होता है शांति से, प्रेम प्यार से रहना. अब देखो दोनों क्लोज चॉइसेस हैं, दोनों में हम बात कर रहे हैं कि उनकी आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस के लिए से उन्होंने हार्मोनियस सोसाइटी बनाई या इंटरकनेक्टेड वे ऑफ लिविंग डिजाइन करा. ध्यान से देखो, हार्मोनियस सोसाइटी की बात कर रहे हैं या इंटरकनेक्टेड वे ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं? हार्मनी का मतलब होता है प्रेम प्यार शांति, इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ. अब देखो, अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझोगे ना, तो वो हार्मनी की, हमें ये नहीं पता कि ये लोग शांति से साथ में रहते हैं, हमें ये पता है कि अब ये अलग नहीं है, ये जुड़ गए हैं, ये इंटरकनेक्टेड हैं. ठीक है, तो इसीलिए काफी क्लियरली इसका आंसर सी होता. दिस हैपेंड आफ्टर अ लॉरी लेडन विद टमेटोज. भाई कुछ हुआ है, कुछ, वो कुछ क्या है वो हमें यहाँ पे चाहिए. लेडन विद टमेटोज वर्थ 21 लाख रुपीज वेंट मिसिंग. भाई एक 21 लाख वर्थ के टमेटोज की लॉरी ही गायब हो गई. One of the three traders who had sent the tomatoes on lorry said they had lost the contact with the driver in Nasik and his GPS has been switched off, had been switched off. The traders were not sure if the truck had been hijacked or the driver had stolen the tomatoes. This is the third time tomatoes have been stolen and उसका प्राइस बढ़ के 150 पर केजी हो गया. पुअर अस. Now let's see. हमें कुछ चाहिए नंबर वन, जो ब्लैंक में कुछ आएगा. Now it has to relate to ये जो कि पहले हुआ. ठीक है, नहीं, उसके चोरी होने के बाद ये हुआ है. ठीक है, तो सोचो एक लॉरी जिसमें इतने सारे टमेटोज थे वो चोरी हो गई, ये तीसरी बार हुआ है, तो क्या हुआ होगा इसके बाद? लेट्स सी. नासिक ओवर टू कोलार इज द बिगेस्ट टमेटो मार्केट. पॉजिटिव है, अपने को तो कुछ चाहिए. भाई 21 लाख वर्थ के टमेटो तीसरी बार चोरी हो गए, 150 रुपए पर केजी का टमेटो बिक रहा है. क्या हुआ होगा उसके बाद? वो लीडर बना होगा. पॉजिटिव तो कुछ नहीं हुआ होगा, नेगेटिव हुआ होगा. पैनिक एंड कंफ्यूजन reigned among the traders in कोलार रीजन, प्रोड्यूस मार्केट. भाई ये हो सकता है. अच्छा, देन वी हैव a couple took the hijacked vehicle to a nearby market and stole the tomatoes there. भाई ये कह रहे हैं कि चोरी हो गया, उसके बाद ये सब हुआ है, तो क्या हुआ होगा? कपल ने हाईजैक्ड व्हीकल को कहीं ले जाके टमेटोज को बेच दिया होगा. होल्ड पे रख लेते हैं. थ्री ट्रेडर्स जॉइंटली हायर्ड अ लॉरी टू कैरी टमेटोज. ये दिस नहीं हो सकता. सो बिटवीन बी एंड सी, ध्यान से देखो, व्हाट डू यू थिंक? टमेटो की लॉरी चोरी हुई है और टमेटो के प्राइस बढ़ गए हैं, तो क्या ये हुआ होगा कि कपल ने उसको बेच दिया होगा? अगर बेचा होता तो प्राइस बढ़ता नहीं ना.
प्राइस भी बढ़ा है तो आई गेस पैनिक एंड कंफ्यूजन बढ़ गया होगा वहां पर। सो ऑप्शन ओनली ऑप्शन बी विल बी अ क्लियर विनर। फिर भी हो सकता है सोचने में, इन दो ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने में टाइम लगा हो, तो हम रफली मान के चल सकते हैं कि 1 सवा मिनट इस क्वेश्चन में हमारा लग सकता था। द नेक्स्ट वन, सम, ओके, and dash found. Okay, we have come to filler based questions. थोड़ा सा स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है यहाँ पर, वरना आंसर्स नहीं आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए चाहिए दो चीजें। एक, अपने को चाहिए नॉलेज, एंड दूसरा अपने को चाहिए स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क लगाएंगे तो आंसर्स आ जाएंगे। अब देखो अपने पास गिवन क्या है, एन डैश, एन के बाद वॉवल साउंड चाहिए, एनालिसिस, ओवरव्यू, इन्वेस्टिगेशन, अप्रेजल। वेल सारे सही हैं, अभी हमने पढ़ना शुरू नहीं करा। एन डैश फाउंड दैट वन ऑफ द मैराथन रनर्स हैड, okay, systematically, purposely, deliberately, particularly slowed down in the last 2 kilometers after waving, beckoning, signaling, speaking to the one behind him. क्या भागते हुए मैराथन रनर ने बात करी होगी किसी से? नहीं, बात शायद नहीं करी होगी। और ही पर्टिकुलरली स्लोड डाउन, भाई ऑप्शन ए आउटराइट एलिमिनेशन के लिए जा सकता है। अच्छा, दूसरी चीज अब देखते हैं, ऑप्शन अपने पास बचे हैं तीन। आफ्टर वेविंग, अच्छा देखो, वेव का मतलब होता है सिंपली हाथ हिला के बाय बोलना, ऐसे करना। बेकन होता है ऐसे इशारा करना, सिग्नल होता है इशारा करना। बेकन में आप किसी को अपने पास बुलाते हो, यू, ठीक है। तो उसने उससे बेकन किया, इशारा किया कि वेव किया होगा। वेव शायद ना किया हो, व्हेन यू हैव सच गुड ऑप्शन सच एज बेकनिंग और सिग्नलिंग। ऑल्दो सिग्नलिंग बहुत अप्रोप्रिएट लग रहा है, बट फिर भी हम इस बेसिस पे आंसर मार्क नहीं करेंगे। सिस्टमैटिकली स्लो डाउन भी नहीं किया होगा, मेथोडिकली स्लो डाउन नहीं किया होगा। लेट्स सी बी एंड सी में से। एन ओवरव्यू फाउंड, अच्छा ओवरव्यू का मतलब होता है एक जनरल व्यू, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है एनालिसिस, एग्जामिनेशन। अब आप देखो, एक ओवरव्यू में पता चला होगा या एक इन्वेस्टिगेशन में पता चला होगा? आई गेस इन्वेस्टिगेशन इज मोर अप्रोप्रिएट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ इफ यू टेक अ लुक एट द वर्ड्स, क्या ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स है? नहीं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम थोड़ा सा एलिमिनेशन या ध्यान से देखें कि गिवन क्या है, तो आंसर निकालना मुश्किल काम नहीं था। ये एक बहुत डुएबल क्वेश्चन था जिसमें गलती का स्कोप बहुत कम था, एंड टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए था। इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, क्या हुआ भाई आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में? इंडिविजुअल्स आर इनंडेटेड विद इंफॉर्मेशन, नेसेसिएटिंग द कल्टिवेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। भाई आज के टाइम पर जहां हम इनंडेट हो रखे हैं इंफॉर्मेशन से, दैट मीन्स हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। नेसेसिएट करना है, ये जरूरी है, नेसेसरी है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग को कल्टीवेट करें, ताकि ये जो इन्फ्लक्स ऑफ डेटा है, अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है और मुझे ज़रूरी है कि मैं इस इन्फ्लक्स को हैंडल कर पाऊँ, तो आई थिंक जो वर्ड मुझे यहाँ चाहिए, बहुत पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना। अब देखो, जुडिशियसली, डिसर्निंगली, डिस्क्रीटली, थॉटफुली। चलो ठीक है, ओवरव्यूज में देखूंगी तो सारे ठीक लग रहे हैं, अभी डीप मीनिंग समझेंगे। एडिशनली द प्रेवलेंस ऑफ फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट्स अ चैलेंज, होलिस्टिक चैलेंज, ग्लोबल चैलेंज, परवेसिव, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक चैलेंज हो सकता है क्या? आई गेस ऑप्शन ए रूल आउट हो जाएगा। वैसे इसमें मुझे ऑप्शन सी भी गलत लग रहा है, आई मीन इसका थर्ड पार्ट भी गलत लग रहा है। देखो देख भी लेते हैं उसे। प्रमोटिंग मीडिया लिटरेसी एंड कल्टिवेटिंग द कल्चर ऑफ स्केप्टिज्म आर वाइटल फॉर, भाई इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप अगर डेमोक्रेटिक वैल्यू चाहिए, इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, तो आप इनहिबिट थोड़ी करोगे इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप को या डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, उनको तो आप बढ़ाना चाहोगे। तो ऑप्शन ए तो इजीली रूल आउट होगा। नाउ वी आर लेफ्ट विथ थ्री चॉइसेस, लेट्स सी। सो हम कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स नेविक भाई भरा पड़ा है अपने पास इंफॉर्मेशन। अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन में परेशान नहीं होना और आपको ठीक से उसे हैंडल करना चाहिए, आना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डिसर्निंगली, डिस्क्रीटली या थॉटफुली इनफ्लक्स करो, डेटा को इनटेक करो। थॉटफुली ना बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन थॉटफुली का जनरली जनरली मीनिंग होता है जब आप कोई चीज़ बहुत सोच के बड़े प्यार से अरेंज करो। जैसे लेट्स से द मदर थॉटफुली अरेंज द सन्स टिफिन, तो
थॉटफुली में केयरफुल कंसिडरेशन है, लेकिन थॉटफुल में थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ लव, एलिमेंट ऑफ वो भी होता है, कंसिडरेशन भी होता है। तो दो थॉटफुली लुक्स लाइक अ वेरी गुड ऑप्शन, बट इफ आई हैव बेटर ऑप्शन सच एज discerningly or discreetly, तो आई वुड नॉट सेटल फॉर समथिंग सच एज thoughtfully. डिसर्निंग का मतलब होता है खूब अच्छे जजमेंट के साथ सोच समझ के कुछ चलना, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। डिस्क्रीट का मतलब भी केयरफुल होना ही होता है, लेकिन यहाँ पर ना कॉशन भी इन्वॉल्व है। तो अगर कोई काम आप डिस्क्रीटली करते हो, तो आप जो है जनरली कॉशन इसमें ये है कि आप सोचते हो बस चुप से हो जाए, केयरफुली काम कर लो ताकि बहुत हल्ला नहीं मचे, इस चीज के लिए चुपचाप से हो जाए। अम, अच्छा, अब देखते हैं आगे। सो बेस्ट चॉइस तो इस टाइम बी लग रही है, बट फिर भी एक बार आगे के ऑप्शंस को भी देखेंगे, तब ऑप्शंस इवैल्यूएट एलिमिनेट करेंगे। तो अभी तक हमने दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए हैं, ए एंड सी। वी आर लेफ्ट विथ बी एंड सी। लेट्स सी इसमें से बेटर क्या है। सो डिसर्निंगली और डिस्क्रीटली. Additionally, the prevalence of fake news and misinformation presents a pervasive challenge, global challenge. Well, pervasive है जो सब जगह है, global भी सब जगह है, तो ठीक लग रहा है. Promoting media literacy and cultivating a culture of skepticism are vital for fostering informed या serving informed. Well, you don't serve informed values, you foster, you support values. So last blank में fostering is way better than serving. So I guess we have a clear winner here, that is option B. इस क्वेश्चन में भी हो सकता है आपको अंडर 30 seconds करने में ना हो पाए, लेकिन फिर भी अंडर 1 minute ये क्वेश्चन किया जा सकता था. Now let's see the next one. Give me just 1 second. Conspiracy theorists suggest that if climate change is slowly turning the planet into an oven, then this must have been the outcome of our enemies intentional. भाई, conspiracy theorists क्या बोल रहे हैं कि अगर climate change से धीरे धीरे हमारा planet oven में convert हो रहा है, तो ये हमारी enemies का intentional किस चीज का outcome हो सकता है? Machination, error, plotting, inaction. हमारे एनिमीज का इंटेंशनल एरर हो सकता है, उन्होंने जानबूझ के एरर किया. अच्छा, इफ देर आर नो कोइंसिडेंसेस इन द वर्ल्ड, then everything including dash events, outstanding, indescribable, catastrophic, advantageous, इंक्लूडिंग कैन बी कंट्रोल्ड. अगर मुझे कंट्रोल करना है, क्या मैं एडवांटेजेस और आउटस्टैंडिंग इवेंट्स को कंट्रोल करना चाहूंगी? ये तो पॉजिटिव वर्ड्स हैं. अच्छे इवेंट्स को कोई क्यों कंट्रोल करना चाहेगा? तो दो ऑप्शंस तो अपने इजीली इजीली रूल आउट हो गए. नाउ वी आर लेफ्ट विद, लेट्स से एरर को हम नहीं रूल आउट करते, हम सोचते हैं कि ये इतना गलत भी ना होता, तो भी हम उसे एक पॉसिबिलिटी भी लेके अगर चल लें, तो इंटेंशनल एरर और intentional plotting. If there are no coincidences in the world, then everything including indescribable है catastrophic. भाई catastrophic वो है जिसमें मतलब कुछ गड़बड़ होगा. Indescribable वो है जिसको आप सच मतलब जिसको आप explain, describe नहीं कर सकते. तो आप कौन से वाले इवेंट्स को कंट्रोल करना चाहोगे, जिनको समझा नहीं सकते या जो डिजास्टरस होते हैं? आई गेस वी हैव अ क्लियर, ये इजी क्वेश्चन था, यहाँ पर आंसर निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं था. इसका आंसर हो जाता ऑप्शन सी, ये अंडर 1 minute वाला क्वेश्चन था. इट इज वाइडली आर्ग्यूड दैट सोशल मीडिया कैन बेनिफिट एस्पायरिंग, ओके, ऑटोक्रेट, एंटरप्रेन्योर, एनार्किस्ट, डेमोक्रेट. भाई इसमें एनार्किस्ट थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है. एनार्किस्ट वो है जो गवर्नमेंट में बिलीव नहीं करता, जिसे गवर्नमेंट नहीं चाहिए. डेमोक्रेट वो है जिसे गवर्नमेंट में बिलीव है, जो डेमोक्रेसी में मानता है. एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन है. और ऑटोक्रेट वो है या तो रूलर है या वो जिसको भाई मेरी बात मानो, माननी पड़ेगी, सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. ग्रामेटिकली तो सारे वर्ड सही हैं. वी नीड अ नाउन हियर. Populists in particular latch on to social media today as a way to connect directly with people. तो ठीक है, पॉपुलिस्ट जो है सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं टू कनेक्ट डायरेक्टली विद पीपल. डैश द रिस्ट्रेंट्स ऑन द बिहेवियर दैट पॉलिटिकल पार्टीज वुड हैव प्रोवाइडेड. भाई कुछ तो है, कोई रिस्ट्रेंट्स है जो उन्होंने प्रोवाइड किए थे. इसको जब वो डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर रहे हैं और इस चीज को, रिस्ट्रेंट्स को क्या किया होगा, अवॉइड किया होगा, उसको उसको ओवरलुक किया होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा ना.
बाईपासिंग एनफोर्सिंग तो होता है, और सपोर्ट कर देना अनस्क्रूपलस का मतलब तो डिसऑनेस्ट होता है। ये तो वर्ड भी गलत है, ये तो ग्रामेटिकली भी फिट नहीं होगा वहां पर। बाईपास का मतलब अवॉइड करना होता है, अवॉइड तो अवॉइड होता है। तो आई गेस दो ऑप्शंस इजीली रूल आउट हो गए। जो ये मिडिल वाला वर्ड है, इट्स अ मिसफिट इन द मिडिल ब्लैंक. They can also profit from the echo chambers, which reinforce the sense that whole people uniformly support a populist leader or surprisingly support a populist leader. अब देखो, पहले ब्लैंक में ऑटोक्रेट और डेमोक्रेट दोनों ठीक लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट ब्लैंक में देखो, आप कॉन्टेक्स्ट को अगर समझोगे तो सेकंड में भी बाईपास और अवॉइड दोनों चल जाएगा। यूनिफॉर्मली सपोर्ट करेगा या सरप्राइजिंगली? भाई वो जो है सोशल मीडिया से कनेक्ट कर रहे हैं, और वो इको चेम्बर्स जिससे वो सारे लोगों में एक पॉपुलिस्ट लीडर का सपोर्ट को एंजेंडर कर रहे हैं, तो क्या वो यूनिफॉर्म होगा या वो सरप्राइजिंग होगा? सरप्राइजिंग वाला एलिमेंट कोई है नहीं ना, ऑन द होल सब जगह पे सब कुछ होगा। सो आई गेस ऑटोग्राड पढ़ के थोड़ा सा डाउट हो सकता था, लेकिन बाकी दो चॉइसेस की वजह से वी कैन क्लियरली एस्टैब्लिश दैट ऑप्शन ए इज अ बेटर आंसर चॉइस। अगेन ये अंडर 1 मिनट या एट द मोस्ट 1 मिनट में करने वाला क्वेश्चन था। The next one. In the era of globalization, cultural diversity is celebrated and valued across societies. However, the rise of xenophobia and intolerance poses a dash challenge. भाई, हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की, जिसमें कल्चरल डाइवर्सिटी है, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, वैल्यू किया जाता है। हाउएवर मतलब लेकिन जेनोफोबिया, जेनोफोबिया होता है जब आपको फॉरेन कल्चर या फॉरेन पीपल बिल्कुल पसंद नहीं होते। तो अगर जेनोफोबिया है और इनटॉलरेंस है, तो कैसा चैलेंज हुआ होगा? हमें यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड चाहिए। लेट्स सी, कॉम्प्लिकेटेड, मल्टीफेसिटेड, प्रेसिंग, सोफिस्टिकेटेड। क्या चैलेंज सोफिस्टिकेटेड हो सकता है? डू यू थिंक इट्स अ गुड फिट? इजीली रूल आउट कर दिया हमने ये वाला ऑप्शन। नाउ वी आर लेफ्ट विथ थ्री चॉइसेस. Building inclusive communities and promoting intercultural dialogue are essential for एडवांसिंग, स्टिमुलेटिंग, नर्चरिंग। वेल, देखा जाए तो तीनों ठीक लग रहे हैं, होल्ड पे रखते हैं। Understanding and respect among diverse population. Additionally, educating individuals about the benefits of cultural diversity and challenging truism, archetype, stereotype. भाई क्या चैलेंजिंग हो सकता है? ट्रूइज्म होता है कोई भी स्टेटमेंट जो है तो सच, लेकिन वो इतना ओवर यूज हो चुका है कि अब वो क्लीशेड है। जैसे अगर मैं बोलूँ द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट बट इट इज ओवर यूज, देयरफॉर अ क्लीशे। सो ट्रूइज्म, आर्केटाइप भी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग होता है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें एजुकेट करना है इंडिविजुअल्स को अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड चैलेंजिंग ट्रूइज्म या आर्केटाइप, हमें बनाना है इंक्लूसिव सोसाइटी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, तो क्या हमें ट्रूइज्म या आर्केटाइप या स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप होता है जैसे कोई भी चीज जो कन्वेंशनली हम सोचते हैं ये तो ऐसा ही होता है, यहाँ पर बायस इन्वॉल्व होता है। जैसे मैं सोचूं, अरे फॉरेनर है ये तो खराब ही होगा, इस वाली कम्युनिटी को बिलोंग करता है ये तो बुरा ही होगा, इस कम्युनिटी का ये तो अच्छा ही होगा। सो वो होता है स्टीरियोटाइप। तो आर्केटाइप परफेक्ट एग्जाम्पल है, ट्रूइज्म रिपीटेड ओवर यूज्ड एग्जाम्पल है, एंड स्टीरियोटाइप एक बायस्ड चीज है जिसमें मुझे मेंटल ब्लॉक है। व्हाट डू यू थिंक? कैसा चैलेंज, क्या चैलेंज करना चाहिए हमें यहाँ पे, ट्रूइज्म, आर्केटाइप या स्टीरियोटाइप? आई गेस हमें इसका आंसर सिर्फ सी होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि कल्चरल डाइवर्सिटी अगर तुम्हें चाहिए और अगर जेनोफोबिया और इनटॉलरेंस एक चैलेंज पोजेस कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर तुम इंक्लूसिव कम्युनिटी बनाना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि नर्चर किया जाए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट अमंग, मतलब डाइवर्स पॉपुलेशन में हम नर्चर करें अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट, और हम एजुकेट करें इंडिविजुअल्स को अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, स्टीरियोटाइप को चैलेंज करें और क्रिएट करें इंक्लूसिव सोसाइटी। तो थोड़ा सा लंबा ज़रूर था, शायद 1 मिनट लग जाता, बट डुएबल क्वेश्चन था। आई गेस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो अभी भी अगर हम रुकें तो हमने पहले 12 क्वेश्चंस को अंडर 8 मिनट्स डील कर लिया था। इन 8 क्वेश्चंस को अगर आपने, वेल इसमें कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे, मगर अगर 8 मिनट्स में भी डील किया हो तो हम 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं और हमने 16 मिनट्स का टाइम लिया है। ये मैं हायर साइड पे लेके चल रही हूँ। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं फिर क्या हुआ।
So one of the statement below contains a word used incorrectly or inappropriately. ये बहुत इजी क्वेश्चन है उस बच्चे के लिए जिसने थोड़ा सा होमवर्क किया हुआ है। तो इसमें कोई 4 सेंटेंसेस में से एक वर्ड गलत यूज हुआ होगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। एक वर्ड है कैलस और एक वर्ड है, एक वर्ड है ये वाला कैलस और एक वर्ड है ये वाला कैलस। ये वाला कैलस CALLUS होता है, जैसे जब आप पेन को, जो लोग पेन से बराबर काम करते हैं तो यहाँ पर निशान बन जाता है, या आप बहुत माउस चलाते हो बिना पैड के तो यहाँ पे निशान बन जाता है। तो स्किन अगर थिक हो जाती है बहुत मतलब घिसने से किसी जगह पर, तो वो निशान बनता है ना, उसे कैलस कहते हैं। और कैलस, दूसरा कैलस विद द यू इन इट मीन्स हार्टलेस पर्सन, मतलब बहुत ही इनसेंसिटिव पर्सन। लेट्स सी, when it is not too thick, callus protects the feet from damage। तो भाई ये स्किन हार्डन हुई होगी, ये तो सही यूसेज है। A buildup of callus is one of the most common causes of discomfort। भाई अगर बिल्ड हो गया callus, डिस्कम्फर्ट होगा, हाँ हो सकता है, ग्रामेटिकली सही है। वी डोंट नो कि फैक्चुअली है कि नहीं, पर ग्रामेटिकली तो सही है। He received 40 lashes on his feet delivered with callous indifference। हार्टलेस इंडिफरेंस रहा होगा ना, इनसेंसिटिव इंडिफरेंस रहा होगा, तो ये गलत है। अपना आंसर तो यही होना चाहिए। द डॉक्टर एग्जामिन द कैलस, भाई कैलस को उसने एग्जामिन कर लिया, हार्ड एंड स्किन को उसने देख लिया बट रीड नहीं करा, तो इसका आंसर सी था। अगर आपको ये क्वेश्चन पता हो तो ये फिर से 30 सेकेंड्स वाला क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही यूज्ड अ फैन टू डिफ्यूज। अच्छा, इसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं, डिफ्यूज, आई गेस यहाँ देख लेते हैं, डिफ्यूज एंड डिफ्यूज। एक डिफ्यूज का मतलब होता है स्प्रेड करना, एक डिफ्यूज का मतलब होता है डीएक्टिवेट करना। लेट्स सी, द स्टेन ग्लास डिफ्यूज द लाइट, भाई लाइट डिफ्यूज हो गई, स्प्रेड हो गई, ठीक बात है, सही है। रियलाइजिंग दैट द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स वाज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, द टीचर डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड, उसने फैला दिया सिचुएशन को, नहीं ना, उसने डिफ्यूज, ये वाला डिफ्यूज जैसे बम को डीएक्टिवेट करता है ना, जैसे वो मूवी में दिखाते हैं कि सिर्फ हीरो जाता है, लाल और हरी तार होते हैं उसमें से, वो सब बोलते हैं ग्रीन काट दे, लेकिन वो लाल वाली काटता है और बम डिफ्यूज हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। तो डीएक्टिवेट करना सिचुएशन को, डिफ्यूज करना होता है विद एन ई, तो ये गलत लग रहा है। एवरी मॉर्निंग द अरोमा फ्रेशली बेक्ड ब्रेड डिफ्यूजेस स्प्रेड्स, बिल्कुल सही है। He used the fan to diffuse the smoke to spread the smoke. I guess clear winner. Answer is C, 30 seconds. The next one. Bans provide the community. Okay, ban word use हुआ है, organic farming ban. Ban का मतलब होता है prohibition. तो ये तो सही है, B सही है। Government bans anyone with irregularity, सही है। Child Marriage Restraint Act bans the marriage, सही है। Bans जो है provide community a chance to raise objection। भाई ban अगर आपने कर दिया तो ये कोई objection कैसे raise करेगा? Usage गलत है। Again 30 seconds. ड्यूरिंग हर समर हॉलीडेज शी वेंट टू स्टे, बिल्कुल सही है। आई ऑलवेज स्टे अवेक लेट, बिल्कुल सही है। आस्क्ड फॉर अ स्टे ऑर्डर, बिल्कुल सही है। ड्यू टू द बैन ऑन द स्लॉटर ऑफ कैटल, नेग्लेक्टेड वंस ऑफन स्टे अवे। भाई वो दूर नहीं रहते, दे स्ट्रे अवे, दैट मीन्स दे वॉन्डर अवे, वो वहां से दूर चले जाते हैं। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स वाला। द नेक्स्ट वन, प्रोस्क्राइब एंड देर इज अनदर वर्ड प्रिस्क्राइब। प्रोस्क्राइब बैन जैसा होता है, प्रोहिबिट करना होता है, प्रिस्क्राइब में हम रेकमेंड करते हैं, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आपको मेडिसिन, प्रोस्क्राइब में हम बैन करते हैं, दोनों इंटरचेंजेबली, आई मीन प्रिस्क्राइब रिकमेंडेशन एंड प्रोस्क्राइब फॉरबिड करना, ये इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं गलती कहाँ पर है। So this one is the rules of the organization proscribes the members from engaging, ठीक है ना, बैन कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं, सही है। The coach proscribes late night parties, बिल्कुल सही है, हो सकता है, बैन कर सकता है वो। The company's policy proscribes employees from disclosing, बिल्कुल रोक सकती है। The software manual proscribes step by step, नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था prescribes. So I guess again 30 seconds. The sound of laughter and loud music from the neighbor's house disturbed his train of thought. ओके, ट्रेन ऑफ थॉट होता है आपका लाइन ऑफ थॉट, तो यूसेज सही है। इफ यू रियली वांट टू सी द लैंडस्केप एंड सीनिक कंट्री साइड, इट्स बेटर टू टेक अ ट्रेन, बिल्कुल सही है। बाय फॉलोइंग द ट्रेन ऑफ ब्लड, भाई ट्रेन ऑफ ब्लड नहीं होता, ट्रेल ऑफ ब्लड होता है, यानी कि उसकी जो लाइन बन रही थी, तो ऑप्शन सी में गलती है। माई फ्रेंड हैज पिक्ड अप अ स्ट्रे डॉग एंड इज लुकिंग फॉर समवन टू ट्रेन, भाई बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 30 सेकेंड्स। ओके, नाउ वी हैव कम टू द लास्ट सेगमेंट। 24 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 20th क्वेश्चन तक हमने देखा था, 20 क्वेश्चन हमने 16 मिनट में कर लिए थे। यहाँ हमने कितने क्वेश्चन करे हैं? सिर्फ 5।
5 क्वेश्चन आई गेस, या मे बी 4 क्वेश्चन, 4 और 5, वट एवर नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेट्स से 4 क्वेश्चन भी अगर थे जो हमने 30 सेकेंड्स के अंदर करे, तो ये हमने 2 मिनट्स के अंदर कर लिए हैं ये क्वेश्चन। तो 24 क्वेश्चन आप 18 मिनट में कर चुके हो। अभी भी आपके पास 12 मिनट बचे हैं और हम 24 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसे और हायर साइड पे ले जाओ कि चलो मुझे पैरा कंप्लीशन में इससे भी ज्यादा टाइम लगा होगा, तो भी 24 क्वेश्चन आप 20 मिनट्स में भी अगर कर चुके हो ना, तो भी आपके पास 10 मिनट बचे हैं। और 24 राइट क्वेश्चंस का मतलब हो गया आप 96 मार्क्स का पेपर सही अटेम्प्ट कर चुके हो। ठीक है, तो अभी तक दो चीजें जो बिल्कुल क्लियर हैं 24 के पेपर को बेस रखते हुए, वो ये कि प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑल इंडिया लेवल पे अगर कोई पेपर लिखना चाहते हो तो आप रैंडम गेसेस पे काम नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। और दूसरा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क एंड सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस। सही क्वेश्चन सेलेक्ट करो, पहले उन सेक्शंस पे काम करो जो या तो बनेगा या नहीं बनेगा। ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस आसमान छुएगा एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द रिमेनिंग पेपर इन अ फ्लैश। आप बहुत अच्छा, आपके पास सोचो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए टाइम कितना सारा बच जाएगा, या पैरा जंबल जैसे क्वेश्चन के लिए कितना टाइम बच जाएगा, और आप कितना जस्टिस कर पाओगे। नाउ हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि इसी पेपर में पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन के एंड फिलर के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इतने ट्रिकी थे जो शायद अंडर 1 मिनट ना होते। आई हैव नॉट इंक्लूडेड दोज वंस। आई माई फोकस, द फोकस ऑफ टुडेज सेशन इज कि सिलेक्शन मेरा किन क्वेश्चंस का हो जिन्हें मैं करूं एंड सही करूं, टाइम वेस्ट नहीं करूं और एक अच्छा स्कोर खड़ा करूं। ओके, सो दैट्स द आइडिया। नाउ द लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव इंक्लूडेड इन दिस वर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ये पहला पैसेज था हमारे पेपर का जो पढ़ने में भी आसान था, एंड अगर आप क्वेश्चंस को पहले नजर डाल लेते तो आपको समझ में आ जाता कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जिन्हें आप अंडर 1 मिनट पर क्वेश्चन इजीली कर सकते थे। बट आई अंडरस्टैंड ऑनलाइन मोड में पैसेज पढ़ना, फिर क्वेश्चंस को देखना, उन्हें इवैल्यूएट करना अंडर 1 मिनट नहीं हो पाता, एंड स्पेशली व्हेन आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू माई सेल्फ, तो मैं क्यों जल्दी करूं। मैं अभी भी आराम से भी उसको पैसेज को पढ़ूंगी ना, तो भी मैं कट ऑफ निकाल सकती हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, बिकॉज जितने क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करे हैं हमने उसे जुडिशियली सेलेक्ट करा and systematically काम किया है based on our good preparation. Now I guess let's move to the last section and let's see कि okay ये यहाँ पर है, it's playing games with me. So पहला passage था ये हमारे reading comprehension section का. We will read the passage. Well, I'll give you the overview of the passage. तो ये था कि इंडिया जो है फिर से न्यूज में है, लेकिन रॉन्ग रीजंस की वजह से। दैट मीन्स राइटर इज नॉट हैप्पी अबाउट इंडिया बीइंग इन द न्यूज। तो उसने बोला है कि एक असेसमेंट हुआ है आईक्यू एयर का, जिसमें एयर क्वालिटी ऑफ द वर्ल्ड सिटीज 23 में इन न्यू दिल्ली जो है वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कैपिटल मानी गई है। भाई टॉप पे हो आप, लेकिन अच्छे रीजन से नहीं हो, खराब रीजन से हो। न्यू दिल्लीज एनुअल एयर क्वालिटी इज रेटिंग इज 19 times the World Health Organization's annual limit recommended in 2021 for its pollutant level. The picture is no better as far as the larger union territory of Delhi is considered. Its annual record of pollutant level makes it third most populous region globally. तो भाई इंडिया ये यहाँ पर अगर है, तो जो द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है वो थर्ड मोस्ट पॉपुलस पॉल्यूटेड रीजन है ग्लोबली। अच्छा, दिल्ली may have hogged headlines on air pollution, but the problem is far from unique in metropolis. IQ Air's findings reveal that even lower tier cities, तो भाई सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, जो इंडिया की जो सेकेंड और थर्ड टीयर टाउन्स हैं, लोअर टीयर टाउन्स हैं, वो भी चोक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पोअर एयर क्वालिटी। सो इट्स नॉट जस्ट दिल्ली, देयर आर अदर स्टेट्स एंड towns and cities and districts that are not states but towns, cities and towns that are choking because of poor air quality. Then we are talking about Begusarai in Bihar is world's most polluted city.
भाई दिल्ली पोल्यूटेड कैपिटल था, लेकिन सबसे पोल्यूटेड सिटी बेगूसराय है. Partly industrialized housing, more among others, as oil refinery. Begusarai is primarily agrarian, and Begusarai is not an outlier. But ये जो है outlier is generally somebody who's outside, not included. तो वो अकेला नहीं है. Mulanpur in Punjab, which is transitioning to an urban settlement, and Siwan in Bihar are among 42 Indian cities that are among the 50. भाई ग्लोबली 50 मोस्ट पॉपुलेटेड जगहें हैं, उसमें से इंडियन 42 है. तो सोचो कितना बड़ा चंक इंडियंस का है, इंडियन सिटीज का, जो पॉपुलेटेड है. Many judicial pronouncements have upheld. अच्छा, upheld का मतलब होता है सपोर्ट करना. तो बहुत सारी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ने सपोर्ट किया है द राइट टू क्लीन एयर एज अ corollary, as more like an inference to the fundamental right to life, and pushed governments to act. But Delhi is bad air, despite the introduction of CNG and building of metro rail work in early years of this decade, and in spite of the presence of GRAP that kicks in when the air quality turns bad, becomes more stringent as air quality worsens. भाई कुछ भी कर लिया, वहां पे air quality नीचे ही जा रही है. तो जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है वो भी कह रहे हैं कि भाई राइट टू क्लीन एयर है. um, Improving air quality across Indian cities requires three fundamental changes. One, governments must turn to science to understand, measure, and monitor the problem. तो भाई इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी अक्रॉस इंडियन सिटीज जो है, एक तीन फंडामेंटल चेंज चाहिए उसके लिए. पहला चेंज क्या है? गवर्नमेंट्स मस्ट टर्न टू साइंस एंड अंडरस्टैंड, मेजर एंड मॉनिटर द प्रॉब्लम. टू, दे हैव टू, भाई पहली चीज उन्हें साइंस को यूज करना चाहिए, मेजर और मॉनिटर करना चाहिए. टू, दे हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्स. भाई बिहेवियरल चेंजेस चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ इंसेंटिव एंड पेनल्टी चाहिए. एंड थ्री, क्लीन एयर हैज टू बी सीन एज अ कॉमन पब्लिक गुड. भाई ये सबके लिए होना चाहिए. To be sure, it is not just the responsibility of center or a battle for courts to wage, but a fight that states, municipal governments have to be a part of. This is the battle for our future. तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ सेंटर और कोर्ट्स नहीं करेंगे, ये स्टेट्स और म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम सब के लिए है. यहाँ पर लाके उसने उसको रोक दिया. Now let's take a look at the questions. Right, the question: based on the information in the passage, who has endorsed the right to clean air? भाई किसने किया है the right to clean air? I think काफी clearly कोर्ट ने किया था. कोर्ट ने अपहोल्ड किया था इंफॉर्मेशन को, remember? So I guess the answer will be, just one second. Give me just one second, children. All right, so where were we? Right. Based on the information, who has endorsed the right to clean air? I guess it was clearly the courts who had endorsed the right to clean air. बोला था ना, the judicial system upheld the statement. The next one. In the last sentence, this is the battle of our future. अगर अपने फ्यूचर के लिए हम बैटल कर रहे हैं, तो राइटर इज प्रोजेक्टिंग अ ब्लीक फ्यूचर, has is being melodramatic, being ambivalent, emphasizing the need to fight. Well, इसका आंसर क्लियरली डी होगा, बट फिर भी समझ लेते हैं. ब्लीक फ्यूचर अगर है, अंधेरा दिख रहा है, तो बैटल क्यों कर रहे हैं हम? तो हम हार मान चुके हैं. टेलो मेलोड्रामेटिक बहुत ओवर एम्फसाइज, ओवर ड्रामा कर रहा है. एम्बिवेलेंट में कंफ्यूजन है, डिलेमा है, ऐसा कुछ नहीं है. वो बोल रहा है वी हैव टू फाइट, देयर इज नो चॉइस. इजी क्वेश्चन था ये वाला. द नेक्स्ट वन, दैट किक्स इन. भाई किक्स इन कैसे था? उस सेंटेंस को एक बार जाके देख लेते हैं जहां पर लिखा था किक्स इन. सो बिल्कुल लास्ट में कहीं पर था कि ओके, दिस इज इट, किक्स इन. भाई कोई चीज अगर किक इन कर रही है, देखो उसने बोला इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ GRAP दैट किक्स इन, वो आ जाता है. तो किक इन को अगर आप कॉन्टेक्चुअली भी देखोगे, तो वॉयलेंस नहीं था, गेन्स इंपॉर्टेंस नहीं था, गेट्स रिजेक्टेड नहीं था, इट कम्स इनटू फोर्स.
The next question. The first sentence in the passage mentions that India was in news again uh, as a world leader. What is the writer's intention? भाई राइटर का इंटेंशन था यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करना? नहीं, जजमेंटल होना। जजमेंटल जब हम होते हैं तो हम बायस्ड होते हैं, वो बायस नहीं था, वो क्रिटिकल था। अच्छा, बी और सी क्लोज चॉइसेस हैं, यहाँ पे काफी कंफ्यूजन हो सकता था। क्रिटिकल जब हम होते हैं ना तो हम क्रिटिक करते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं, बट इंटेंशन होता है हमारा कि हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, लेकिन नेगेटिव अगर हम होते हैं तो हम थ्रू एंड थ्रू नेगेटिव होते हैं, हम गलत ही बोलते हैं, ये गलत वो गलत, ऐसा क्यों वैसा क्यों। बट यहाँ पर राइटर ये भी तो बोला था ये कर लो, ऐसा कर सकते हैं, लास्ट में उसने सजेशंस दिए थे ना। तो अगर उसने सजेशंस दिए थे तो वो नेगेटिव नहीं था, वो क्रिटिकल था। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, जस्ट टू क्लियर द कट ऑफ, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। भाई हमें चाहिए एक करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इज लिमिटेड टू मेजर सिटीज इन इंडिया, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि राइटर ने शायद बोला था कि 50 मोस्ट ग्लोबल पोल्यूटेड जो सिटीज ग्लोबली हैं, इंडिया में तो 42 ही हैं 50 में से, है ना, कम है, मतलब कम तो नहीं बोला था, पर देन 50 नहीं थी सारी, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो, ये स्टेटमेंट तो गलत है। लिमिटेड टू मेजर सिटीज इन इंडिया, ठीक है। द 50 मोस्ट पॉपुलेटेड पोल्यूटेड सिटीज, सॉरी कुछ गलत बोल दिया मैंने, ये वाला स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। इस वाले को हम अभी फिर से इवैल्यूएट कर लेंगे, कुछ गलत हो गया यहाँ पर, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इंडिया में है सारी की सारी, नहीं, ये नहीं बोला था उसने। अच्छा, दिल्लीज एयर क्वालिटी इज द पुअरेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड, भाई उसने बोला था दिल्ली की है, उसने बेगूसराय भी बोला था, उसने बोला था कि जो एक चीज़ और बोली थी राइटर ने, तीन चीज़ें बोली थी उसने। अ, यहाँ पर उसने एक चीज़ और बोली थी कि जो लार्जर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है वो थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड है, पॉल्यूटेड है ना। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी सा तो है, इसे होल्ड पे रख लेते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन मेक्स इट मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, ये तो काफी क्लियरली उसने स्टेट किया था। तो आ, ये तो सही स्टेटमेंट है, ये तो सही स्टेटमेंट है, ठीक है, इसे होल्ड पे रख लेते हैं। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। अब पहला वाला एक बार और देखना है। द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इज लिमिटेड टू मेजर सिटीज इन इंडिया, क्या सिर्फ मेजर सिटीज में प्रॉब्लम है? देखते हैं एक बार उसने क्या बोला था। शायद उसने बोला था ना कि छोटी सिटीज और टाउन्स में भी प्रॉब्लम है, मेजर दिल्ली जैसी जगहों पर, सिर्फ यहाँ पर नहीं है, मेट्रोपोलिस में नहीं है, छोटे टाउन्स में भी प्रॉब्लम है ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। दिल्ली अकेला पोरेस्ट नहीं है, तो ये भी गड़बड़ है। ये सही था, उसने बोला था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से बेगूसराय सबसे पोल्यूटेड हो गया। तो अब अगर, वेल दीज वर जस्ट 29 ऑड क्वेश्चंस दैट हैव सेलेक्टेड फ्रॉम द पैसेज। अभी हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 2 नहीं देखा, हमने पैरा जंबल नहीं देखे, तो हमने रफली 11 क्वेश्चंस देखे भी नहीं है। हमने सिर्फ 29 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, और टाइम को साथ में स्टडी करते हुए पढ़ा है मुझे समझाने में, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चंस पढ़े समझाए, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा। बट अगर आप लॉजिक समझो, साइंस समझो, तो ये 29-30 ऑड क्वेश्चंस अंडर 30 मिनट्स भी हो सकते थे। हायर साइड 30 मिनट्स में तो हो सकते थे। तभी भी आप ये सोचो आपका कट ऑफ निकल जाए, और वो 10 मिनट है जिसमें आप पिक एंड चूज करके और क्वेश्चंस कर सकते हैं, एंड अपना स्कोर कहाँ पर लेके जा सकते हैं। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आइडिया बस ये था कि वर्बल एबिलिटी सेक्शन एक बहुत ही डुएबल सेक्शन है। इसमें स्कोर बूस्ट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ आपसे डेडिकेशन मांगता है, ये सिर्फ आपसे आपका होमवर्क मांगता है। तो दिन में 2 घंटे 3 घंटे आप वर्बल एबिलिटी को दें, खूब रीडिंग करें, वोकैबुलरी बिल्ड करें, ग्रामर के रूल्स पे काम करें, आपके सारे सेक्शंस कवर हो जाएंगे। मॉक लगाएं, एनालिसिस करें, डाउट्स क्लियर करें।
एंड जब पेपर अटेम्प्ट करें, वेदर इट इज द मॉक और द एक्चुअल पेपर, मेक श्योर आप अपने सिलेक्शन पे काम करें. यू डू नॉट हैव टू वर्क ऑन ऑल 45 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स. मतलब 10 मिनट छोड़कर 30 मिनट्स में भी आप अपना कट ऑफ निकाल सकते हो, बढ़िया से निकाल सकते हो. ऑल यू हैव टू डू इज प्रिपेयर वेल, work smart, and focus on time management when you write the actual paper or the mocks. All right, on this note, I'll take your leave. Take care. Do share your comments in the comment section below. Bye bye.